Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9 standard maths, class 10 standard maths. My target is to finish off this 9th standard maths as well as 10th standard maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for basic maths also. Now this basic maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. Children, yesterday we have seen two different congruency rules. One was SSS congruency rule, another one was RHS congruency rule. In SS congruency rule, I told that if three sides of one triangle is equal to three sides of another triangle, triangles are congruent. In RHS congruency rule, what I said is, if right angle, hypotenuse and one side of the triangle are equal, triangles are congruent to each other. Now let us solve today in exercise 7.3 the problems based on the RHS congruence as well as the SSS congruence. So let's see the question here. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. On the same base BC, they have drawn two triangles. A, B, C is there. D, B, C is there. See here. A, B, C is there. D, B, C is there. They are having the same base. Now you see, before I solve the complete problem, let me see what is the hint that I can draw out of it. इसमें से क्या समझ सकता हूँ मैं, आप देखिए. ABC और DBC दोनों आइसोसेलेस हैं. तो देखिए इसमें से मैं क्या निष्कर्ष आपको निकालता हूँ. ट्रायंगल ABC and triangle DBC are isosceles triangles. Find isosceles triangle. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गिवन है बच्चों. वंस ये मैंने लिख लिया तो आप देखिए ये वाला साइड AB और ये वाला साइड AC इक्वल है.
बाद में ABC ट्रायंगल के अंदर ये और ये इक्वल है, DBC ट्रायंगल के अंदर ये दोनों इक्वल है। DBC ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AB इक्वल टू AC, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। मेरा सेकंड पॉइंट है DB इक्वल टू DC। माय सेकंड पॉइंट इज DB इक्वल टू DC। DB इक्वल टू DC, राइट। तो अभी on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, AD को मैंने बढ़ा दिया और P तक इंटरसेक्ट किया, तो आपको क्या पूछा है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा, ये आपको पूछा है। ऑलरेडी आपके पास ये दो साइड इक्वल है बच्चों, ये दो साइड ऑलरेडी आपके पास इक्वल पड़ा हुआ है, और ये दो साइड आपके पास ऑलरेडी इक्वल उन्होंने ही दिया है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, उन्होंने ही आपको दिया है। तो अब अगर तीसरा साइड आप देखोगे यहाँ पर, तो तीसरा साइड AD इज कॉमन, AD इज कॉमन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू AD। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, बिकॉज कॉमन साइड क्या है, वो कॉमन साइड है। तो व्हाट आई प्रूव्ड इज, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है। 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। और वैसी बात है तो वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आप देखो, ABD, जो आपको प्रूव करने के लिए कहा है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और रूल कौन सा यूज किया बच्चों, हमने जो रूल यूज किया वो है यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ध्यान देना बच्चों, ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्या फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, आप देखिए कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इज कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको प्रूव करना है वो है ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, ये दो कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करना है। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बताने जा रहा हूं, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। ABP CAP, just now I have proved that these two triangles are congruent. Just now I have proved it. So if these two triangles are congruent, then I can say that angle BAD and angle CAD are equal by CPCTC. Angle BAD और angle CAD congruent equal है because CPCTC। तो BAD की बजाय मैं उसको कहूँगा BAP एंड CAP। थोड़ा लंबाई बढ़ाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, what I'll write here is angle BAP is equal to angle CAP और कारण यहाँ पर लिखूंगा CPCTC। बच्चों अगर ये BAP नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, BAD होना चाहिए था और CAD होना चाहिए था। अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा उसको BAD और CAD, और B से लेके D तक है तो नीचे C तक ले लिया, P तक ले लिया, CAD है तो नीचे P तक मैंने ले लिया। तो क्या होगा, जो P मैंने इस स्टेप में लिखा था वो मैं लिखूंगा एंगल BAP
P इज इक्वल टू एंगल CAP। इसको मैं कहूँगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको क्यों प्रूव किया, मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। You will ask, sir, you are supposed to prove ABP and ACP are congruent. Yes, I am coming to that point. Let me consider triangle ABP, ACP. बच्चों ऑलरेडी these two sides are equal, उन्होंने दिया है, it's given. और AP is a common side for both the triangle. यह साइड इसके बराबर है, यह साइड कॉमन है और बीच का एंगल इक्वल है, यानी टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल वन इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल, यानी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि व्हाट आई कैन से हियर इज इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP and triangle ACP, AB is equal to AC, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको फाइव लिखेंगे हम और इसको कहेंगे गिवन। ओके, नेक्स्ट है AP इक्वल टू AP, AP इक्वल टू AP, ये क्यों है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो व्हाट आई हैव प्रूव्ड इज दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इज कॉमन, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, बीच वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल क्या है वो BAP इक्वल टू CAP है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 7। ये कहाँ से आया था आपको पता है, CPCTC। तो क्या हुआ, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडिंग एंगल एंड वन इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। और रूल कौन सा यूज़ किया मैंने, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल मैंने यूज़ किया। तो ये मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। मेरा नेक्स्ट पार्ट वो बोलता है कि AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये मुझे प्रूव करना है। और AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये भी मुझे प्रूव करना है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए मेरा तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वाला साइड BP और ये वाला साइड PC दोनों इक्वल होगा। दोनों क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो अब मैं क्या करूँगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल लूँगा। कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल, BPD CPD, ध्यान देना फिर से एक बार, BPD CPD। देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा। चलो इन ट्रायंगल BPD CPD, देखिए आप BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 8 और ये कहाँ से आया, गिवन। फिर BP इक्वल टू CP कहाँ से आया, बिकॉज
CPCTC से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BP इक्वल टू CT, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 9। ये कहाँ से आया? CPCTC। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड जो है वो कॉमन है बोथ। तो क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा? आई कैन से दैट DP इक्वल टू DP, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 10, बिकॉज कॉमन साइड, बिकॉज कॉमन साइड। तो अभी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज कॉमन, तो अंदर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। आप बोलोगे सर, यू विल से सर नोवेयर इट इज आस्क्ड, यू आर सपोज टू प्रूव ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABP is congruent to ACP, and AP bisects angle A as well as angle D. Why are you taking this? Yes, I'll come to the point. Why I am taking it, I'll come to the point. But let us try to understand what I have done. To prove that the first triangle is congruent, what I said is this is equal to this is equal to this is common, three sides are equal, three sides are equal, congruent. To prove that second triangle is congruent, what I said is this is equal, this is common, these two angles are equal, so SAS it is congruent. Now what I am saying is take the third triangle, and this is equal to this is equal to this is common side, so it is congruent. So what I can say is triangle BDP and triangle CDP are congruent. Triangle BDP congruent to triangle CDP. Which rule I have used? I have used the yes congruency rule. Sir, why did you use it? Yes, I'll come to the point. मैंने क्यों यूज किया, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। AP bisects A as well as D, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे बता सकते हो। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल BDP और एंगल CDP इक्वल होगा। एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP होगा, एंगल CDP होगा। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 11। थोड़ा देखो बच्चों, थोड़ा यहाँ देखो आप, BAP इक्वल टू CAP है, BAP और CAP इक्वल हो गया, BDP और CDP इक्वल हो गया। यानी ये लाइन दो एंगल बना रही है, एक तो BAP और CAP बना रही है, दूसरा BDP और CDP बना रही है। यानी AP क्या कर रहा है, A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो कौन कौन सा इक्वेशन हमने लिए यहाँ पर? ये चौथा इक्वेशन और ये 11वां इक्वेशन। इसको अगर मैं लूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 11 AP bisects angle A as well as angle D. Fine. लास्ट है AP is the perpendicular bisector of BC, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये मुझे प्रूव करना है। बच्चों बहुत सिंपल है, देखो एंगल BPD और एंगल CPD दोनों इक्वल होंगे, या फिर APBB में कह सकता हूँ और APCB में कह सकता हूँ बाय CPCTC। ये दोनों एंगल्स इक्वल है बाय CPCTC और दोनों लीनियर पेयर है। दो एंगल्स इक्वल है और लीनियर पेयर अगर है तो वो परपेंडिकुलर होगा। दो एंगल्स लीनियर पेयर है, दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, और दोनों इक्वल भी है, और इक्वल और परपेंडिकुलर तभी हो सकते हैं जब दोनों 90 होंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल BP, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA।
because by CPCTC. तो एंगल BPA प्लस एंगल CPA इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है, तो BPA प्लस CPA, सॉरी इन प्लेस ऑफ CPA मैं लिखूंगा BPA फिर से इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी BPA प्लस BPA कितना होगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ BPA इज इक्वल टू 180. तो 1 टाइम ऑफ BPA इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, और 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री. यानी एंगल BPA 90 है, एंगल CPA 90 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AP इज परपेंडिकुलर, AP इज परपेंडिकुलर टू BC. Also BP equal to PC, ये परपेंडिकुलर भी है और ये दोनों इक्वल भी हो रहा है. देयरफॉर आप ऐसे बोल सकते हो, ये कहाँ से आया, बाय CPCTC, क्योंकि आप या तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले सकते हो या छोटा वाला ट्रायंगल आप ले सकते हो. सो देयरफॉर आप ऐसे बोल सकते हो कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. सिंपल है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा लंबा लगेगा बच्चों को मगर सिंपल है. पहले मैंने क्या किया, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, पहला काम खत्म. नेक्स्ट ABP और CP के लिए मैंने क्या किया, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल्स इक्वल हो गए कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, तो ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल ले लिया. तीसरे के लिए मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल को लिया, ये ट्रायंगल को लेकर हमने क्या किया, ये साइड का ये इक्वल है, फिर उसके बाद में ये कॉमन है, ओके, और ये दो इक्वल हो गए, तो अगेन क्या हो गया, फिर कॉन्ग्रुएंसी लिया. यानी कॉन्ग्रुएंसी आप क्या करना पड़ेगा, 3 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और बड़े आसानी से आप इसको यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू माइट अंडरस्टूड इट. प्रैक्टिस इट वंस अगेन, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू, if you practice it properly you will be able to do it well.